इन्हें बिठा देना बहुत ज़रूरी है। इसमें तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया जा सकता। I think any artist, whether an actor or a writer or a singer or a music director, any artist would understand what I'm saying, that when we are working as professionals, with time we develop a prowess and we can do our work with almost half a mind because we develop a craft. But once in a while, for any artist, comes a time when that work, that assignment tells you that you better wake up and stand on your toes, because it doesn't need your craft, it doesn't need your smartness, it doesn't need your control over the medium, it needs you. It needs that part of you which is perhaps buried under the dust of everyday's cleverness, smartness, negotiations, that honesty, that sincerity, that genuine feeling for this subject. And every time when I have worked with JP Sahab, I have felt that. आप लिख ही नहीं सकते, और लिखेंगे तो झूठ लगेगा, जब तक आप उन सिपाहियों के, उन सोल्जर्स के, उन ऑफिसर्स के दर्द को, उनकी हिम्मत को, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को महसूस ना करें, आप लिख ही नहीं पाएंगे, और लिखेंगे तो झूठा लगेगा, उतना ही झूठा जैसे अक्सर पॉलिटिशियंस की स्पीच लगती है, इसलिए कि वो दिल से नहीं है। और ये बात का असर तो तभी हो सकता है कि जब दिल से हो। JP दत्ता साहब औरों ने भी कोशिश की है और फिल्म बनाने की, बनी थी पहले ज़माने में भी, बहुत सारी बनी थी, 60s में, 70s में, 50s में, बड़े बड़े स्टार्स ने भी बनाई हैं और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट के साथ भी बनाई गई। वजह क्या है कि 21 साल के बाद हम आपकी पहली फिल्म जो इस सिलसिले में थी उसे याद रखते हैं, बिकॉज इट रियली केम फ्रॉम द हार्ट, दैट इज द थिंग। हम एक बच्चे से झूठ नहीं बोल सकते, हम प्रिटेंड करें कि हम बच्चे से मोहब्बत करते हो, ना करते हो, बच्चे को पता रहेगा। हम एक जानवर से मोहब्बत नहीं झूठी बता सकते, वो हिलेगा नहीं आपसे जब तक आप दिल से ना मोहब्बत करते हो। तो ये हम शो बिजनेस वालों की गलत फहमी है कि हम ऑडियंस से झूठ बोल के निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट ओनली वर्क्स व्हेन इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। इट मे बी अ कॉमेडी, it may be a light-hearted film, it may be a drama, it may be a romantic film. It has to come from the heart. And hats off to Mr. JP Datta that all these three films that we are talking about, the quality of the film is that it has come from the heart. And when I heard these songs, I wrote them, time passed. Then after a while, 2 days back, Nidhi sent me these songs and I heard them. And I called him. And I said, I wanted to thank you. He said, why? I said, for these songs. He said, but you have written the song. I said, but you have taken it. And you have asked me to write these kind of songs. It is a rarity today. I don't know why it has happened that you are either sensible or saleable. You are either sensitive or interesting. You are either coherent or popular. Who has made these choices? I don't know. I am not the audience. Generally, an artist is required. If you are an actor, they'll tell you, थोड़ा और life डालिए. आपका death scene है, इसमें थोड़ी life और होनी चाहिए. If you are a music director, अरे यार ये क्लासिकल ट्यून कहाँ यार चलती है, ज़माना बदल गया, कहाँ कौन सा राग बेस लिया आए हो। इफ़ यू आर अ सिंगर, भैया ये मुर्की मिंट जाने दो, सीधा गाओ। उसी तरह से somebody told somebody
यार वो जावेद अख्तर से गाने मत लिखवाया करो यार, वो गानों में शायरी लिख देता है। तो भाई गाने में मैं अलजेब्रा लिखूं, केमिस्ट्री लिखूं, फिजिक्स लिखूं, क्या लिखूं? तो गाने में शायरी मांगने वाले अब बहुत कम हो गए हैं। अगर आपका गाना कोहेरेंट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसमें कुछ मीनिंग भी है, तो ये तो बहुत डेंजरस बात है। इट शुड बी ऑलमोस्ट गिब्रिश। तो इस ज़माने में आप you start counting those filmmakers who want sensible, intelligent songs with certain gravitas, with certain literary value, and you will find your fingers too many if you count them on the fingers. ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो चंद लोग जो अब बचे हैं जिन्हें वेल रिटन सॉन्ग चाहिए, जो हमसे कहते हैं नहीं इससे भी बेहतर आप लिखिए, उनमें से एक जेपी दत्ता। और मैंने चंद भी इसलिए कह दिया कि बाकियों के साथ भी काम करना है भाई, समझो। सो थैंक यू वेरी मच। और आप अभी गाने सुनेंगे, और जो बात मैं कह रहा हूँ, आई एम श्योर दैट यू वुड अग्री विद मी कि आज ऐसे गाने लेने वाले नहीं हैं। ऐसे गाने बहुत कम लोगों को ज़रूरत है ऐसे गानों की। ये गाने अब मुश्किल से आते हैं। जहाँ तक अन्नू मलिक साहब की बात है, आज दोपहर में कोई मेरा इंटरव्यू लेने आया था, तो उनका आपका अन्नू मलिक साहब के बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने दो बातें कही थी, दोनों बता देता हूँ। एक तो ये कि अगर इनको कभी आप मुंबई टेलीफोन नंबर्स की डायरी दे दीजिए, डायरेक्टरी दे दीजिए, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये उसे भी कंपोज कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। दूसरे, अन्नू मलिक के लिए गाना लिखना ऐसा है जैसे आप वॉल्केनो से सिगरेट जलाने की कोशिश करें। तो हम ये काम की बहुत प्रैक्टिस हो गई हमें, एंड मैं इन्हें एक मेजर 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 टैलेंट मानता हूँ। ही इज़ मोन्यूमेंटल। और एक ही आदमी मुझसे डिसएग्री करता है, वो है अन्नू मलिक। सो थैंक यू वेरी मच। अब मेरा ख्याल है कि मैं चाहूँगा कि जेपी दत्ता साहब यहाँ आए स्टेज पे। बारात के दूल्हा तो यही हैं, हम लोग तो सब